one and all present here. I would like to welcome you all to the exclusive knowledge session organized by the School of Architecture IPS Academy. It is my privilege to introduce today's speaker, architect Anaga ma'am. Ma'am has over 20 years of experience in the field of architecture, currently serving as the chief architect at Creative Ventures in Pune. She has been leading impactful projects since 2014. Apart from her extensive professional achievements, she is also author of the book Decode Success. Her journey is a testament to how passion and perseverance can lead to remarkable accomplishments. Now I would like to invite ma'am to the stage. हेलो एवरीवन. पढ़ाई के माहौल में मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ तुम लोग को. एग्ज़ाम है मंडे से. Who will have exams from Monday? Not your batch, like not the class who's here. आप लोग के किसी के मंडे से एग्ज़ाम्स हैं? Okay. Okay. So, do you know the topic we are going to discuss today? आपको टाइटल पता है? How many of you knew about the title या पहली बार देख रहे हो? पहली बार? Everyone is पहली बार. Okay. So, what comes to your mind when you read the title of the seminar? Okay, first I want to know how many are from first year? Okay, and another, which one, second year, third year में कौन, second year कौन है? Okay, and anybody from third year as well? Okay, so proportionately सारे लोग हैं. Okay, so I want to first talk to you about how did the Mad Week go. आपको एक चीज़ जो Mad Week की अभी बहुत ज़्यादा याद आ रही है कि वो उसमें बहुत मज़ा आया, वो क्या था? Who wants to talk? Mad Week में सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आया? हाँ, एवरीथिंग. ओके, एंड उसके अलावा अभी अगर मैड वीक के जैसे एक्टिविटीज़ चलती रहे और पढ़ाई बंद हो जाए तो चलेगा? चलेगा ना? सो देयर आर, मैड वीक इज़ ऑल्सो वे ऑफ लर्निंग. इट इज़ जस्ट नॉट इनसाइड योर क्लासरूम. So coming back to the presentation that we are having today, the title is Z-axis in architecture. So how many of you would like to tell me about what is the Z-axis? First years? Whoever don't want to attend, like they can go out, but I don't want you fiddling with your phones, for sure. Please. You want Google search कर रहे हो तो मत करो. उसके लिए फ़ोन देख रहे हो तो. Hello? Yes. In 2D images, we add a third axis, which gives us a like 3-dimension figures. Like Yes. shapes are 2-dimensional. When I add a third z-axis, we get forms in form of cubes, spheres. That's the third axis. Correct. मैम इन लोग को फर्स्ट ईयर में ADG ये कब करते हैं ये लोग जो सारे शेप्स वगैरह होते हैं उसके सायोग्राफीज वगैरह? फर्स्ट ईयर, सेकेंड सेम, फर्स्ट सेम. Okay, you have done with the shapes and the sciographies and the 1-point perspective, first year students? वो किया है आप लोगों ने? Like you have forms create किए हैं. ADG subject क्या वो? IDG है ना? Architectural design in first year. I want to listen from first year students कि आप लोग क्या करते हो first year में? Mike please first year में pass कीजिए. It's okay if it is the wrong answer. We are here, all of us are here to learn. वो चलेगा. I want the mic to halt. Wherever it is, just I want to listen to your voice. आप लोग फर्स्ट ईयर में आर्किटेक्चर डिज़ाइन में क्या पढ़ाते हैं आपको? मैम अभी हम लोगों ने ग्राफिक्स में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस पढ़े हैं. ओके. और सेक्शंस पढ़े और मैं अभी सेकंड सेम स्टार्ट हुआ है. अभी हम लोगों ने पर्सपेक्टिव 2-point पर्सपेक्टिव स्टार्ट किया है. ओके. सो आपको क्या लगता है जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस और पर्सपेक्टिव्स है इससे आपका टेक अवे क्या होना चाहिए? आपको क्या सीखना है? सिर्फ उस शेप के बारे में सीखना है और पर्सपेक्टिव कैसे बनता है वो तो सीखना है, पर उसके अलावा आपको उससे क्या सीखना है? इसके बारे में सोचा है? सोचा है? नहीं. इट्स ओके इफ इट्स अ नो, लाइक इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल अगर नहीं सोचा है तो. सोचा है? आई वुड लाइक अ आंसर फ्रॉम यू. नहीं हाँ, यस यू. नहीं सोचा है. सो
What is the study of architecture all about when you begin with कि हमें तो buildings design करनी है, तो हम इन shapes के साथ आज क्या कर रहे हैं? हमारा पूरा साल इन shapes में निकल गया, अभी हमने डिज़ाइनिंग भी नहीं शुरू की. ऐसा फीलिंग कितने लोगों को फर्स्ट ईयर में आता है? आता है, गुड. और किसी को आता है? या ये डाउट नहीं आया? किसी को ऐसे डाउट आया कि हम पूरे साल तक शेप्स के बारे में और ड्राइंग कैसे करते हैं इस बारे में सीख रहे हैं, तो आगे क्या होगा, ऐसा किसी के मन में सवाल आया? यस, 3 people. एनी वन ऑफ यू? ये फ्रॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर? फर्स्ट ईयर में होते हुए आया था? आया था. So basically, whatever you learn, all coincides into something similar. कि आपको हर सब्जेक्ट, हर कैटेगरी ऑफ लर्निंग एक ही डायरेक्शन में लेके जा रहा है टू क्रिएट गुड डिज़ाइंस लेटर ऑन. चाहे वो आर्किटेक्चरल आप ऑर्थोग्राफिक एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, पर्सपेक्टिव है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आपका बिल्डिंग सर्विसेज है, मटेरियल स्टडी है, हर चीज़ एक डायरेक्शन में लेके जाता है. हाउ मेनी ऑफ यू गो टू जिम और हैव गॉन टू जिम सम टाइम इन योर लाइफ? या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप लोग करते हो? ऐसे कितने लोग हैं? काफ़ी सारे हैं. तो जब आप पहली बार स्पोर्ट्स के लिए बाहर जाते हैं तो आपके जो कोच होते हैं वो अगर स्विमिंग भी कर सीखने जाते हैं तो पहले आपको फिज़िकल एक्सरसाइजेस या जॉगिंग करवाते हैं. ये किसी की मेमोरी है स्कूल डेज़ की, बचपन की? लाइक आप टेबल टेनिस सीखने जा रहे हैं या बैडमिंटन सीखने जा रहे हैं पर आपको रनिंग कराई जा रही है. ये किसी की मेमोरी है बचपन की? बट उस समय समझ नहीं होती, बहुत छोटे होते हैं. अल्टीमेटली एवरीथिंग इज गैदरिंग टुवर्ड्स कि आपको फिजिकली फिट बनाया जा रहा है फॉर दैट स्पोर्ट्स वॉट एवर यू हैव चोजन. So all the study that you do during architecture also is aiming for making you good, good at the ultimate profession that you are aiming to do later on. तो उसकी डायरेक्शन में ही है. तो हर सब्जेक्ट को आप अगर अलग अलग छोड़ देंगे और आप उसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो फिर उसका मतलब नहीं बनेगा. इट्स वेरी सिमिलर टू एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द जेड एक्सिस, एज वन ऑफ द स्टूडेंट्स जस्ट कंट्रीब्यूटेड, दैट द जेड एक्सिस इज द थर्ड एक्सिस. आप लोग जब पेपर पे या लैपटॉप पे आप जब पहले प्लानिंग के स्टेज पे या फर्स्ट स्टेज पे आप कोई ड्राइंग बनाते हैं, इट्स अ 2D ड्राइंग. आप पहले केस स्टडी करोगे या किसी प्रोजेक्ट का विजिट करोगे, उसके बाद उसके प्लान्स बनाओगे या कोई चीज़ देखो उसके प्लान स्टडी करोगे. इट्स अ 2D ड्राइंग. नाउ व्हाई इज़ द थर्ड एक्सिस सो इम्पॉर्टेंट? द थर्ड एक्सिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दैट गिव्स यू द infinite possibility of how the building can look like, or infinite possibility of how a space can look like. So that is why the third axis is very very important. और इस third axis में अगर हम even ताजमहल का कट सेक्शन प्लान देखेंगे तो क्या वो रेक्टेंगुलर दिखेगा बीच वाले स्ट्रक्चर का? डोम को हटा दें और कट सेक्शन प्लान बनाए. थर्ड ईयर्स प्लीज़. तो क्या ये थर्ड ईयर्स, आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम थर्ड ईयर, क्या ये रेक्टेंगल या स्क्वायर दिखेगा? दिखेगा, राइट? सो जब आप एक क्यूबॉइड को कट कर रहे हो तो क्यूबॉइड को कट करोगे तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होगी? स्क्वायर दिखेगा. एक क्यूब को काट रहे हो तो क्या दिखेगा? स्क्वायर दिखेगा. इसका प्लान भी बीच वाले पोर्शन का स्ट्रक्चर का स्क्वायर है तो स्क्वायर दिखेगा. पर एक स्क्वायर या एक क्यूबॉइड को किस तरीके से हैंडल किया गया है वर्सेस इसका किस तरीके से इसको एक डिज़ाइन फॉर्म में डेवलप किया गया है, दैट इज लुकिंग लाइक दैट. That is that person's imagination to take the y-axis in that direction. ठीक है? Although it is historic, it is old. Everyone knows Taj Mahal, and we are in a new phase of design and life now. जब सारे modern buildings बन रहे हैं, पर this is one of the wonders of the world. तो इसके proportion में कुछ तो अच्छा होगा ना जो आज तक लोग इसके बारे में कहीं ना कहीं किसी example में बात करते हैं. Next slide please. सो आप लोगों में से कई लोगों ने इस टाइप के एक्सरसाइजेस किए हैं. ये किसी आप लोगों में से किसी का शीट है क्या? इस पर देख के बताना. विच वन इज़ योर्स? फर्स्ट वन, कैन यू टेल मी अबाउट इट प्लीज़? माइक पास कीजिए.
Ma'am, it was actually about the formation of cubes, how the architect used cubes, and in a way he just transformed that cube with pillars all around, and he created a 360 view with the cube, because we consider that cube is a very rigid structure, a rigid shape. So he, by taking the shape, he tried to create flow in the spaces, and he used like windows and all the curtain walls. So first he made the composition, and he tried to integrate the nature by blurring the image, the distance between indoor and outdoor by creating इसको zoom such कर सकते हैं windows slide and को? all. वो जो drawing है ऊपर उस portion में? The cuboid part has that windows. So how many of you have seen this image sometime during your study? This structure. Can you name it? By which architect? Why is it so important that you have seen it as an example? क्यों? Yes. अब तो ये यूनेस्को हेरिटेज साइट भी हो गया. This is the UNESCO heritage site now. Can you add more to it? Now you had done the assignment for this. Ma'am, actually, in the first stage, he used the shapes like cuboids and cylinders and cubes. So he composed a form out of it, and then after that he added the elements. After creating the form, like adding the cuboid and the cylinders, he added the elements of integration of nature and all. So आपको आपके peers के साथ क्या शेयर करना है फर्स्ट ईयर वालों के साथ कि इसमें से आपने क्या सीखा? Mom, what I got to know that I consider that cubes and cuboid are very basic shapes. Right. But then when I studied it, I got to know that how we can add elements into just simple shapes and create buildings which can be useful for many, many years. Right. Okay. Can you add about it, like what was this activity? Yes, ma'am. This is basically Zeitgeist, okay? So this we have, I think, started long back, around like 6-7 years. So this is specially done, this is like in 5 days exercise in which students are worked on, like this was a project of a residential. Yeah, it's a time problem for 5 days, and every team has a different mentor. So for this project, I think I was the mentor, and who was leading us was Sandeep Yadi sir. So he has his inputs regarding, the innovation. फर्स्ट Yeah. ईयर में से किस आप लोगों ने मॉडल मेकिंग किया? किस चीज़ के मॉडल्स बनाए? किस चीज़ के मॉडल्स बनाए फर्स्ट ईयर में? मैम वर्कशॉप में हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाया है, टेंसाइल स्ट्रक्चर्स बनाए, टेंसिक्रिटीज़ बनाई हैं, और एक हमको एक आर्क डेली करके था, उसमें हम लोग को एक रेप्लिका बनाना था बेसिकली एक किसी भी बिल्डिंग का. वो बनाया. किस Yes, बिल्डिंग ma'am. का रेप्लिका बनाया? ग्रुप एक्टिविटी था? हम इंडिविजुअल. इंडिविजुअल. तो किसका रेप्लिका बनाया आप लोगों ने? एक आप खुद का बता सकते हो, फ्रेंड्स का भी बता सकते हो. आई डोंट नो क्यों लोग बात करने में बहुत चल रहे हैं. मैम मैंने एक A+ आर्किटेक्ट्स करके ग्रुप है, उनका नामीस कैफ़े करके एक है, मैंने उसका रेप्लिका बनाने की ट्राई किया था. व्हाट डिड यू मेक? मैम वो क्लास ए की एक्टिविटीज़ थी. मैम मैं क्लास बी में हूँ. हाँ, तो आपकी क्लास में क्या एक्टिविटी थी? मैम हमें मिनिएचर कराया वर्कशॉप में, मॉडल बनाने के लिए मिनिएचर का. किस चीज़ का मिनिएचर बनाया आप लोगों ने? यस मैम, वी वर गिवन डिफरेंट रूम्स लाइक अ गार्डन, आउटडोर लाइब्रेरी और रीडिंग Did you रूम. make even the furniture in the garden, the proportion of? Yes, ma'am. We had to keep the proportion in mind. Ma'am, the proportions were, ma'am, the scale was 1:20, and we had to make the miniature with that scale in mind. It's okay, don't chill, no problem. जो बोलना है बोलो. Yes, ma'am. मैम मेरा मिनिएचर का टॉपिक मैंने चूज़ किया था रीडिंग नोक. एंड सो मैम उसके अंदर एक कारपेट था, डेस्क बनानी थी, शेल्फ्स बनानी थी. So I want the mic to be passed to the second year.
और आई वॉन्ट द सेकेंड ईयर्स टू टेल द फर्स्ट ईयर्स कि ये जो सारी एक्सरसाइज होती है उससे आपने फर्स्ट ईयर में नहीं सीखा था, पर वो जब आप सेकेंड ईयर में उस चीज़ को याद करते हो तो आपने एक्चुअली उससे क्या सीखा था जो आपको सेकेंड ईयर में ज़्यादा यूज़फुल हुआ? एनीबडी फ्रॉम सेकेंड ईयर? मैम पहले तो मॉडल मेकिंग ही सीखी थी, मतलब पहले बार ही मॉडल बनाए थे फर्स्ट ईयर में, तो मॉडल मेकिंग ही सीखी थी। और किस तरीके से अपन, क्योंकि जनरली लाइक वैसे ही खड़े नहीं होते हैं स्ट्रक्चर, अपन कुछ और लाइक कट्स वट्स लगाते हैं तो वो प्रॉपर पार्ट, और जब अपन मॉडल पे काम करते हैं तो अपन को और डिटेल में पता चलता है कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर में क्या समझ में आएगा। तो फर्स्ट ईयर वालों में से कितने लोगों को ये रियलाइजेशन अभी हो चुकी है और कितनों को आज आपके व्हेन योर पेयर इज टॉकिंग टू यू अभी लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ सेंसिबल था? कितने लोगों को लगा कि नाउ दैट द सेकेंड ईयर पीपल आर इंटरैक्टिंग विथ यू कि हाँ इसका आगे यूज़ होने वाला है? अब ध्यान में आ रहा है सबको फर्स्ट ईयर में? ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। द वर्क इन द कॉलेज स्टार्ट्स फ्रॉम हाउ इट वॉज इन द प्रीवियस स्लाइड. Then once you enter the design stage, you start doing things like this in your design stage, that you are planning and then you are zoning. फिर आपका केस स्टडी होता है, आप उसमें से केस स्टडी पर से कुछ इन्फ्रेंसेस निकालते हो, कुछ एलिमेंट्स आपको आपके केस स्टडी में से अच्छे लगते हैं, यू ट्राई टू एम्बाइब दोज एलिमेंट्स इन योर डिज़ाइन एंड देन यू स्टार्ट डेवलपिंग डिज़ाइन. फिर मासिंग पे आते हो, जोनिंग पे आते हो, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करते हो एंड देन यू डेवलप योर प्लानिंग. एम आई राइट और इज़ देयर एनी अदर थिंग आई एम मिसिंग आउट ऑन? किसी को कुछ ऐड करना है? प्लानिंग स्टेज, केस स्टडी स्टेज, इन जो पहला स्टेज है उसमें. ओके, देन द राइट साइड ऑफ द इमेज टेल्स यू अबाउट जब मल्टी लेवल आप कोई ये डिज़ाइन कर रहे हो उसमें देन यू स्टार्ट प्लेसिंग ऊपर के फ्लोर्स. ग्राउंड फ्लोर के बाद में ऊपर के फ्लोर में क्या आएगा, उसके ऊपर के फ्लोर में क्या आएगा. सो दिस इज़ अ very schematic level of one educational institution where the spine is the common corridor and each wing determines a different activity happening into it. So इस तरीके के काम के साथ शुरुआत होती है. So has first year done some kind of design मैम? जो जब सेकेंड सेमेस्टर उनको कुछ छोटा डिज़ाइन प्रॉब्लम दिया जाता है? ओके, तो क्या अभी क्या दिया हुआ है इन लोग को? अभी पहुँचे नहीं है. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. जब बाद में डिज़ाइनिंग के साथ होते हैं और प्लानिंग में गड़बड़ी होती है तब स्ट्रक्चर्स में ऐसी कुछ गलतियाँ होती हैं. जब आप स्टेयरकेस सिर्फ एक बार प्लान में दिखाते हो और ऊपर जाके उस स्टेयरकेस का कुछ यूज़ नहीं होता है तो ऐसी चीज़ें बनती है. नेक्स्ट वन प्लीज़. या फिर ऐसी भी बनती हैं. ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू इमेजेस? बताओ. मतलब डिफरेंस तो है ही, पर ऑब्जर्वेशन क्या है? माइक प्लीज़ पीछे जिसको भी बात करना है वो पास करो. अरे आपके साइड में बैठा था, उसको कुछ बोलना था. हाँ, आपने हाथ उठाया था. मैम वो लेफ्ट वाली इमेज में आपका एरो नहीं दिया था प्रॉबेबली तो इसलिए और राइट की इमेज में क्या हुआ? उसका लैंडिंग का प्लेसमेंट और बाकी स्टेयर्स का प्लेसमेंट ही गलत था वो. ठीक है. सो नाउ यू नो दैट ईच स्टेज ऑफ ड्राइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट योर ड्राइंग्स डिपिक्ट समथिंग दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी बिल्ट. और अगर गलतियाँ होती है तो वो इस तरीके के ब्लंडर्स हो जाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. और जब हम बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक मॉडल बनाते हैं जिसमें हम कोई आर्किटेक्चरल प्रोजेक्शन या किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं और एक बॉक्स टाइप एलिवेशन पे पहुंचते हैं पहली बार लाइफ में डिज़ाइन करते हुए कि मैम मेरा प्लान बहुत अच्छा बैठ गया है पर मुझे एलिवेशन में समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है. ऑल ऑफ अस गो थ्रू दिस, इवन आई हैव गॉन थ्रू दिस. हाउ मेनी ऑफ यू आर फेसिंग दिस राइट नाउ कि प्लानिंग अच्छी हो गई है पर एलिवेशन समझ में नहीं आ रहा है? Even when I was as a student, even I have gone through it कि नहीं समझ में आ रहा है. So and these are realities, these are real time pictures. So जो पूरा कलरफुल वाला पिक्चर है वो सिंगापुर के लेबर हैबिटाट का एरिया का पिक्चर है. मतलब ऐसा नहीं कि अपने देश का पिक्चर है. ये गलतियाँ इंडिया से बाहर भी होती हैं और इस तरीके की चीज़ें बनती हैं और दे आर सच eyesores. सो डू यू फील दैट आफ्टर बिकमिंग आर्किटेक्ट्स इफ़ यू स्टिल कंटिन्यू टू डिज़ाइन बिल्डिंग्स एंड maybe it's not a set design or you're not into architectural photography,
या आर्किटेक्चरल जर्नलिज्म या अ टूरिस्ट आर्किटेक्ट टेकिंग एवरीवन आउट प्लेसेस, अगर आप बिल्डिंग डिज़ाइन करोगे तो आपको ऐसी तो नहीं करनी है ना। कितने लोग अग्री करते हैं कि ऐसा काम नहीं करना है, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। सो टुडेज लेक्चर इज़ ऑल अबाउट दिस कि ऐसा काम नहीं करने के लिए हमें आगे क्या करना है। इट इज़ ऑल अबाउट वाई द जेड एक्सिस इज़ इम्पॉर्टेंट। टिल नाउ आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू यू कि आप अब लोग अभी क्या करते हैं, और अब आप उसी चीज़ को रिलेट कीजिए कि जो आप अभी कर रहे हैं उससे आपको क्या टेक अवे होना चाहिए ताकि आप आगे ऐसा काम नहीं करें। सो टुडेज़ इंटरैक्शन इज़ ऑल अबाउट दैट एंड ट्राई टू मेक द यूज़ ऑफ इट, बेस्ट यूज़ ऑफ इट। कितने लोगों का डिज़ाइन अभी ऑलमोस्ट फाइनल है और थोड़ा कुछ फाइनल होने का बाकी है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ऑलमोस्ट फाइनल है पर कुछ फिनिशिंग बाकी है, या सबका पूरा हो चुका है? सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ है तो और अच्छी बात है, फिर उसका और अच्छा यूज़ कर पाओगे। तो आपके जून जुलाई में एग्ज़ाम्स होंगे। ओके, ग्रेट। सो नाउ दैट यू आर एट दैट स्टेज कि स्टार्ट हुआ है डिज़ाइन, और जो जूनियर्स हैं फर्स्ट ईयर वाले हैं वो आपसे ज़्यादा एडवांटेज के पोजीशन में, लेट मी टेल दिस टू द सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर बिकॉज दे आर गेटिंग टू लिसन टू दिस एट द अर्ली स्टेज इन लाइफ। सो मैम अभी जो फर्स्ट ईयर वाला बैच है ना, उनका अप्रोच जब वो सेकेंड ईयर में जाएंगे वो अलग होने वाला है, whoever आर सिटिंग हियर, बिकॉज उनका पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है, उनके सोचने का तरीका चेंज होने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So when the technical drawing goes wrong and see what the contractor is speaking about. Can you read what is written in the slide? Reflected ceiling plan आपने लिख के भेजा था। Reflected ceiling plan था, आपके सीलिंग में टॉयलेट्स दिख रहे थे तो मैंने टॉयलेट्स ऊपर लगा दिए। So ऐसी बहुत सारी मीम्स आपने भी देखी होंगी। So during the study of architecture and handling design, how do we exactly proceed? It's not only about how to prevent mistakes, but also about how do we deliver something interesting जो हमारा design thought है उसको हम reality में कैसे लेके आएं. So we are touching that part now. Next slide please. So everybody comes to this stage. ये इस टाइप का स्टेज सबका आ चुका है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कि मैं ऐसा रूफ दूँ या स्ट्रेट बिल्डिंग बनाऊँ. आया है ना, अलग अलग सेमेस्टर में आया है. तो इसमें से कुड यू कॉन्कर दिस स्टेज एंड गो अहेड, या इस पे अटके और ऐसे ही डिज़ाइन सबमिट हुआ? मेरा भी हुआ था ऐसा, इस टाइप का डिज़ाइन सबमिट जब मैं सेकेंड ईयर में थी, मेरा खुद का हुआ था. कितने लोगों मतलब कि नहीं कर पाए उसको आगे और इसी स्टेज पे चला गया. There are only 3 truthful people, ma'am, in the entire bunch of people who are sitting here. Next one, please. So, ओवरऑल अच्छे डिज़ाइन के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? ओके, यू हैव टू लुक इनटू बैलेंस. बैलेंस का मतलब क्या? उसमें आपके डिज़ाइन में, पूरे डिज़ाइन में सेंस ऑफ प्रपोर्शन कैसा है, इक्विलिब्रियम कैसा है, उसके हिसाब से बैलेंस कैसा है, उसको आप यूनाइट किस तरीके से कर रहे हो, डिज़ाइन में एक रिदम फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, हायरार्की ऑफ स्पेसेस कैसे हो रही है, इसके ऊपर डिज़ाइन डिपेंड करता है. यू मस्ट हैव गॉट योर प्रोफेसर्स टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, राइट? आपके लेक्चर्स हुए होंगे इस चीज़ पे कि आप हायरार्की ऑफ स्पेसेस को देखो, आप प्रपोर्शंस को देखो, क्लासरूम्स को देखो. अभी सेकेंड ईयर में डिज़ाइन टॉपिक्स क्या है मैम? बंगलो डिज़ाइन, रेसिडेंशियल. सेकेंड ईयर फर्स्ट सेम में क्या डिज़ाइन किया आप लोग ने? रेसिडेंशियल. एंड आपका केस स्टडी सबका अलग अलग था या ग्रुप केस स्टडी था? बुक था या एक्चुअल फिजिकल साइट था? बुक केस स्टडी था या फिजिकल साइट था? सेकेंड ईयर्स फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रही हूँ, पिछले वाले सेमेस्टर की. साइट था, यहाँ का था या बाहर दूर था कहीं पे? ठीक है. तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है व्हेन यू आर इवन प्लानिंग एंड व्हेन यू आर स्टडिंग द केस स्टडी, व्हाट यू शुड लुक एट कि वो साइट का साइज़ क्या था, हमारे साइट का साइज़ क्या है.
उस साइट पे उस साइज़ के अंदर कितना परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड था उन रूम्स में, हमारा डिज़ाइन प्रोग्राम क्या है. सो दैट इज़ व्हाट सेज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बैलेंस एंड प्रपोर्शन. वहाँ पे प्लॉट साइज़ बहुत छोटा था, उन्होंने छोटा लिविंग दे दिया, आपके लिए साइट बड़ी दी है, आपने फिर भी छोटा लिविंग दिया, डजंट जस्टिफाई. इट ऑल एंटायरली डिपेंड्स ऑन योर डिज़ाइन प्रॉब्लम कि आपको रिक्वायरमेंट क्या दिया हुआ है. और आर्किटेक्चर एक ऐसी स्टडी है जो हम जब 11th-12th के बाद आते हैं वो बहुत डिफरेंट है दूसरे स्टडीज़ से, कि आपको इसमें से क्या बोलते हैं, इट इज़ नेवर 2+2 4 इन आर्किटेक्चर. आपको कभी ऐसा परफेक्ट जवाब किसी चीज़ का जैसे 2+2 4 होता है, ऐसा आर्किटेक्चर में नहीं होता. सो वॉट यू हैव टू डू इज़ उसमें से मुझे क्या सीखना है, हर चीज़ हर सब्जेक्ट में से आपको ये देखना है कि उसमें से मुझे क्या इम्प्लीमेंट करना है, मुझे क्या सीखना है, क्या यूज़फुल है मेरे डिज़ाइनिंग के लिए, मेरे दूसरे सब्जेक्ट के लर्निंग के लिए, मेरे लिए क्या यूज़फुल है. वो आप आपके तरीके से स्केची नोट्स बनाओ उसके, तो वो बनाओगे तो आपकी प्लानिंग में आपको हेल्प होगा, जोनिंग में हेल्प होगा. तो आपको एक केस स्टडी भी कराएंगे तो भी, डू यू फील दैट एवरीबडी वेंट टू द सेम साइट, सेम केस स्टडी, स्टिल एवरीबडीज डिज़ाइन वॉज स्लाइटली डिफरेंट. सेकेंड ईयर फर्स्ट सेम हुआ था ना, हर एक का डिज़ाइन कुछ कुछ अलग था. क्यों हुआ? बिकॉज हर एक का सोचने का तरीका अलग है. हर एक जो उसमें से देखता है, मुझे यहाँ पे मे बी रेड कर्टन्स 4 कर्टन्स की जगह ये दिख रहा है कि आई एम सीइंग दैट horizontal plank lines are punctuated with vertical pleated lines when I look at this wall. तो हर एक का परसेप्शन ऑफ स्पेस, हर एक का उसमें से जो आप टेक अवे है वो अलग हो सकता है, पर आप आपकी टेक अवे को पकड़ के रखो. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कोई चीज़ कितनी ही अच्छी बुरी क्यों ना हो, आज की तारीख में भी जब बीमार पड़ते हैं तो कड़वी गोली खा के ठीक होते हैं. तो कोई भी सब्जेक्ट अच्छा हो या बुरा हो, उसमें से कुछ तो लेने जैसा ज़रूर होता है. आपको चाहे वो कितना ही बोरिंग या इंटरेस्टिंग लगे, हर चीज़ जो आप पूरे 10 सेमेस्टर्स में सीखोगे, हर चीज़ में से कुछ ना कुछ टेक अवे होएगा, हर चीज़ में से कुछ ना कुछ सीखने जैसा होगा. तो यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन जर्नल और स्क्रिबली नोट्स और स्केची नोट्स या वॉट एवर इट इज़ फॉर योर ओन रीजन्स. सो दैट इज़ वॉट आई मीन बाय सेंस एंड प्रपोर्शन. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर सब्जेक्ट शुरू हुआ सेकेंड ईयर. स्कूल की हिस्ट्री जैसे ही बोरिंग लग रहा है ना. मुझे बहुत लगा था जब मैं पढ़ती थी. यू आर गुड देन, आपको नहीं लग रहा है तो मतलब यहाँ से हिस्ट्री नहीं ख़त्म हुआ, अब यहाँ का हिस्ट्री शुरू हो गया. सीरियसली. तो हिस्ट्री किसको इंटरेस्टिंग लगता है? आर्किटेक्चर हिस्ट्री. ओके, अब आप लोग बताओ आपके पेयर्स को कि आपको क्यों इंटरेस्टिंग लगता है. माइक प्लीज़ पीछे पास करेंगे. कैन यू टेल मी, ये जो स्केच है ये कौन से स्ट्रक्चर का है? Notre Dame. So basically, as I said, that each subject will teach you something. So now I want people who are interested in history of architecture, थोड़ा बहुत interested, I want you to tell कि आपको वो क्यों interesting लगता है. उससे चीज़ें सीखने को मिलती है. लाइक हिस्ट्री टीचर्स अस व्हाट, लाइक पास्ट की चीज़ों से हमको नई चीज़ें सीखने को मिलती है. लाइक रोमन आर्किटेक्चर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. लाइक यूरोपियन के अंदर स्पेशली रोमन एंड ग्रीक आर्किटेक्चर, लाइक उसके अंदर पैंथियन, पार्थेनन, स्टाइल्स ऑफ कॉलम्स, डोरिक, आयोनिक, टस्कन, कोरिंथियन, ये ऑर्डर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. लाइक वो उनका वर्क करने का. Did you take inspiration from that during your second sem का second year का first sem design while designing? आपने उसमें का कुछ एलिमेंट लाया अपने डिज़ाइन में? बट जो मुझे सिटी साइड की उस पे वो मैच नहीं हो रहा था. बट आई समवॉट टुक इंस्पिरेशन. लाइक मुझे उसके अंदर कॉलम वर्क बहुत पसंद है. लाइक रोमन के अंदर लाइक इट शो स्ट्रेंथ एंड लाइक पावर उसके ऊपर. तो आई ट्राइड यूजिंग वर्टिकल एलिमेंट्स इन माय डिज़ाइन व्हिच शोड बोल्डनेस. दैट वाज, बट मुझे इन जनरल नहीं, वो एक पार्ट हो गया. उसके अलावा भी बहुत सारा हम हिस्ट्री सीखते हैं, कुछ कुछ अलग अलग, और छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं. तो उसमें आपको ऐसे स्केचेस याद हैं जो आप हिस्ट्री में करते हैं, जो आपको याद रहेंगे कि वो डिटेल आपको बहुत पसंद आता है. कैन समबडी एल्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट? देयर वाज अ गर्ल हु रेज्ड हर हैंड हु सेड शी लाइक्स हिस्ट्री. कैन यू ऑल्सो कंट्रीब्यूट? Yeah, we had 2 activities given in the history subject. One was creating a newspaper. Everybody was given
everybody made a group of themselves within एक ग्रुप बना के उसके अंदर सब न्यूज़पेपर्स बनाना था. हाउ हिस्ट्री के मतलब जब रोमन टाइम्स में न्यूज़पेपर उन लोगों के कैसे होते थे, वो लोग क्या एलिमेंट्स ऐड करते थे. हाँ वही. एंड द हाईलाइट ऑफ द न्यूज़पेपर हैड टू बी द ओपनिंग ऑफ द कलोसियम. सो या एंड exactly, we designed the entire newspaper on softwares and then got the print of them as if it's an actual newspaper. Second activity was we were यहाँ पे हमारा skit हुआ था history में in architectural context where everybody had to take history के जो भी topics थे उनमें से elements लेने थे and उनको 3D 1:1 स्केल पे बना के उनके मॉडल्स बना के यहाँ पे लगा के उसके अराउंड वी हैड टू डू आवर स्किट. कॉलम्स इन माई ग्रुप वी टुक कॉलम्स एंड वी हैड आवर स्किट हेयर जहाँ पे हमने 3D मॉडल्स बनाए थे टू अंडरस्टैंड हाउ दे वर मेड एंड स्टफ. So, as I mentioned, as the slide also shows you that drawing techniques and learning from history is very important to develop your design skills. And जब design skills बोलते हैं तो उसमें सब कुछ आ गया, आपका planning आ गया, मतलब plan elevation section सब कुछ आ गया. So it is also very important that you sketch. It's okay if you don't show your sketches to others. अगर आपका animal creature is always looking like a cat, that's okay. Don't show your sketches to others, but it is for your own learning. So it is very important that you sketch along with learning your CAD or other design tools that you are learning. How many of the first year students have already started learning or trying out CAD? First year students trying out CAD? Okay, nice, good. सेकेंडली जैसे हम पहले स्लाइड में हमने देखा था बैलेंस प्रोपोर्शन इम्पॉर्टेंट है. तो बैलेंस इन प्रोपोर्शन इम्पॉर्टेंट है. तो इवन वाइल यूजिंग कैड आपका छोटी चीज़ें ड्राइंग्स बनाने में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स फेस करते हैं जब प्रिंटिंग का स्टेज आता है डिज़ाइन का. तब आपका फॉन्ट साइज़ या तो बहुत छोटा होता है या बहुत बड़ा होता है. या किसने फेस किया सेकेंड ईयर थर्ड ईयर बहुत छोटा या बड़ा होता है. इसके लिए आपको यू विल हैव टू डिराइव समथिंग. दिस इज़ अगेन हाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ डिज़ाइन दैट आपको आपके शीट की साइज़ के हिसाब से आपको प्रोपोर्शनेटली प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहिए एक्चुअल स्केल पे कंप्यूटर पे आपके. उस प्रिंट प्रीव्यू में द टेक्स्ट शुड बी जस्ट रीडेबल एंड नॉट boldly coming on your face. That is what is the problem. That is the easiest way to solve it. Like once you grow up and once you start working in your internships, you will be introduced with standardization in the text that you use. मतलब हर ऑफिस का एक फॉर्मेट होता है. बोलेंगे कि अगर आपका A2 साइज़ का शीट है तो आप इस साइज़ का फॉन्ट यूज़ कीजिए. So even I'm just deviating a bit from the main topic, but this will help them in making their sheets. तो आप एक प्रिंट प्रीव्यू में देखिए कि वो जो टेक्स्ट है वो कितना दिख रहा है. ऐसा नहीं कि बिल्कुल पढ़ते नहीं आ रहा है और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा बोल्डली पढ़ते आ रहा है. यू विल हैव टू फाइंड अ गोल्डन मीन ऑफ दैट वाइल डिराइविंग योर ओन टेक्स्ट साइज कि आप कैसे उसको कर रहे हैं. तो उस पर से आपको हेल्प हो जाएगा कि योर शीट प्रपोर्शंस विल बी बेटर. सेकेंड, सी टू इट दैट योर टेम्पलेट इज़ वेरी रेलिवेंट टू द साइज़ ऑफ द ड्राइंग. मतलब ऐसा नहीं कि टेम्पलेट बहुत बड़ा है और आपने उसमें डाले हुए ड्राइंग्स बहुत छोटे हैं. हाउ मेनी ऑफ यू फेस दिस की शीट खाली सा लगता है? मोस्ट ऑफ यू. So that is the reason that you have to set your templates also in a good way. Every part of your drawing is just depicting your work. So everything is design. Everything is design. Everything that you do is a design. Your printout is also, you're designing your template and you're setting up your drawing into a paper is a type of design. Right? That is also important. So your eyes become the third dimension when you look at the plan. Your eyes become the z-axis, and that decides how good your text and how good your drawing is looking into that template. Okay? Next slide, please. हमको ये बहुत सारे this is not the only structure, but you will see n number of inspirations from nature. और इस तरीके के सभी ने images देखे होंगे when you are scrolling through or trying to find how to design. All of you have seen such kind of this thing.
and how many times is it really possible to imbibe this in the design is very limited. बहुत कम टाइप के डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स में हम इस तरीके का या तो नेचर इंस्पायर्ड या बायोफिलिक कर पाते हैं. मोस्टली इट इज़ इधर अ पब्लिक बिल्डिंग या इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग जिसमें आप रूफ्स के साथ प्ले करते हो, इसमें कर सकते हो. बट बिलीव मी दैट इन स्मॉलर zones also you can imbibe things from nature, right, while you're designing a window, or if you're punctuating your wall in some way, you're shaping up your walls in some way. As Villa Savoy में हमने देखा पहले कि एक cuboid is literally lifted up from the ground on circular pillars, and the terrace of the structure has a complete recreational area with a wavy kind of wall above it. I don't know कितनों ने notice किया, second year notice किया था या इतना नहीं नोटिस किया था, नहीं किया था. सो लाइक नाउ वंस वी डिस्पर्स, लुक एट विला सवॉय वंस अगेन, लुक एट द सेम स्ट्रक्चर वंस अगेन. व्हेन यू सी इट वंस अगेन, द थिंग्स आई वांट यू टू ऑब्जर्व इज कि एक क्यूबॉइड को पूरा लिफ्ट किया गया ग्राउंड से, लाइक वेरी प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स इन 1928 1930 में बना हुआ स्ट्रक्चर है, जो अभी भी रेलेवेंट लगता है, अभी भी रेलेवेंट लगता है विद द रीजंस दैट वो उसमें वो मॉडर्निस्टिक एलिमेंट उस समय से है. कैन यू इमेजिन वी आर इन 2025 एंड इट वाज 1928. So it's almost 100 years old and still we feel, yeah, this looks pretty relevant even today. It doesn't look that outdated. Why? It has that kind of element that you still feel that I can still relate to this space. It is all because उसका जो sense of proportion है, the way of design handling that it is done. उसमें जो सर्कुलर कॉलम्स हैं, आप ध्यान से देखोगे उसका प्लान और उसका सेक्शन और उसका 3D, तो आपको दिखेगा कि और उसका जो शेल स्ट्रक्चर है, कॉलम के आगे कैंटिलीवर है स्लैब, उसके बाद उसकी वॉल्स बनी हुई हैं और उसमें सीमलेस विंडोज़ हैं. तो विंडो के बीच में कभी कॉलम नहीं आ रहा है. क्या हम हमारे डिज़ाइन में इस चीज़ को ले सकते हैं? ज़रूर ले सकते हैं. आप बोलोगे कि मुझे कंटिन्यूस ग्लेजिंग चाहिए किसी एक नॉर्थ साइड पे, मुझे नॉर्थ लाइट टैप करनी है, पर मैम कॉलम आ रहे हैं, तो आप ही ने डिज़ाइन किया है प्लान. आपको कैंटिलीवर लेना है, आप लो, आपको कोई मना नहीं कर रहा है. तो ये एलिमेंट आप नोटिस करने से जो मिस आउट करते हो, ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी है और अपनी डिज़ाइन में लानी है. यू आर गेटिंग इट. स्ट्रक्चर इज़ ऑल वॉट द आर्किटेक्ट हैज़ प्रपोज्ड. इट इज़ नॉट दैट द स्ट्रक्चर इज़ पत्थर की लकीर की, इसको चेंज नहीं किया जा सकता. अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियर बोले कि यहाँ से मैं कॉलम नहीं हटा सकता हूँ, यहीं लेना पड़ेगा, तो आप आपका डिज़ाइन चेंज करोगे? नहीं. आप आपका कैलिबर और आपका नॉलेज इतना बढ़ाओगे कि आप प्रपोज करोगे कि नहीं, मुझे ऐसा चाहिए, इसलिए आप स्ट्रक्चर वैसा बनाओ. ये कब होगा? जब सारे सब्जेक्ट मिलके एक डायरेक्शन में आपके दिमाग में काम करेंगे टू डेवलप अ वंडरफुल जेड एक्सिस इन योर डिज़ाइन. ओके, सो as we see a massing or a CAD 3D that is developed, now certain elements in that are used in a different color and two colors are used. So this is a stage of design when the person is deciding कि जो red वाले block से इनका मैं क्या करूँ. So इसकी हम hypothetically अगर हम यहाँ पे बैठ के 5-6 possibilities सोचने की कोशिश करें, तो द फर्स्ट पॉसिबिलिटी दैट कम्स टू माई माइंड इज़ कि उसको प्लान में रोटेट कर दिया जाए, तो उसका एज जो है वो सामने आ सकता है. फर्स्ट पॉसिबिलिटी. सेकंड पॉसिबिलिटी, प्लान को वैसे ही रखा जाए, वॉल को टिल्ट कर दिया जाए, जस्ट टिल्ट द वॉल. सेकंड पॉसिबिलिटी. थर्ड पॉसिबिलिटी, रेड वाले ब्लॉक का हाइट कम कर दिया जाए. थर्ड पॉसिबिलिटी. फोर्थ पॉसिबिलिटी, रेड वाले ब्लॉक में पंचर्स क्रिएट किए जाएँ थ्रू एंड थ्रू. फोर्थ पॉसिबिलिटी. फिफ्थ पॉसिबिलिटी, रेड ब्लॉक को डेड रखा जाए, येलो वाले ब्लॉक्स में पंचर्स किए जाएं. सो यू हैव टू प्ले विथ योर डिज़ाइन इन दैट वे टू डेवलप गुड एलिवेशंस. थोड़ा थोड़ा रिलेट हो रहा है? सो दैट इज़ हाउ यू रिलेट विथ योर डिज़ाइन वाइल मेकिंग दिस. नेक्स्ट वन प्लीज़. सस्टेनेबिलिटी पे सब बात करते हैं. सस्टेनेबिलिटी होती क्या चीज़ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है. शायद आप लोग एक साल और बड़े हो जाओगे तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे. बट अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या ट्रॉपिकल कॉन्टेक्स्ट में डिज़ाइन कर रहे हो, फ्यूचर में करोगे, यू आर द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड. आप लोग, यू आर द फ्यूचर.
वी ऑल आर गोइंग टू टेक बैक सीट्स. यू आर यंग, यू आर 20+. आपको अगले 30 सालों तक काम करना है अलग अलग फील्ड में. कोई शायद फोटोग्राफी करेगा तो हम आपकी फ़ोटोग्राफ्स देखेंगे, कोई बिल्डिंग्स बनाएगा उसकी बिल्डिंग्स देखेंगे, कोई गवर्नमेंट जॉब करेगा वो अपने तरीके से काम करेगा. तो यू आर द फ्यूचर. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप आपकी नॉलेज को हर डायरेक्शन से स्ट्रॉन्ग करें. बिकॉज द ऑनर्स ऑफ डेवलपिंग द कंट्री, द वर्ल्ड इज़ ऑन यू. एंड दैट इज़ वाई फील इम्पॉर्टेंट. इट्स वेरी नेसेसरी टू फील इम्पॉर्टेंट. एंड ओनली फीलिंग इम्पॉर्टेंट डजंट गिव रिजल्ट्स. योर नॉलेज शुड बी थॉरो. आपका नॉलेज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब आप रियल चेंज ला पाओगे. और आर्किटेक्चर एक ऐसी पढ़ाई है, जैसे मैं वापस सेम पॉइंट बोल रही हूँ, इट्स नेवर 2+2 4. इट्स नेवर लाइक दैट. यू हैव टू टेक उसमें से आपने क्या सीखा. मूवी देखने के बाद में फैशन सेंस सब लड़कियाँ सीखती हैं. येस और नो? रेज योर हैंड्स. व्हाई यू शेम्ड ऑफ इट, राइट? साई-फाई मूवीज़ देखने के बाद में बॉयज़ को बाइक्स और कार के बारे में और नॉलेज मिलती है नहीं मिलती है? मिलती है. So is it not an inspiration that you take from the movie? So why are we always taking subject as कि ये सिर्फ जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही हमें लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं लेना है. There is always much more to learn from a subject than what is written in the print. उसके आगे का देखो, उसके आगे का देखो. सब लोग मोस्टली सब लोग टू व्हीलर तो चला लेते हैं. सबके लाइसेंस हो या नहीं हो, आती होगी ना टू व्हीलर चलाना, आती है ना? रेज योर हैंड्स. हाँ. सो जब आपको राइट टर्न मारना है, आप रियर व्यू मिरर में देख के एक जजमेंट लेके टर्न करते हो पीछे से कैसा ट्रैफिक आ रहा है. एंड एवरीबडीज वे ऑफ टर्निंग इज डिफरेंट. यस और नो? हर एक कोई पागल के जैसे स्पीड में टर्न मारेगा, कोई देख के बहुत केयरफुली आगे से करेगा. हर एक का तरीका अलग होता है. सो दैट इज़ लाइफ. You are always analyzing the situation and behaving accordingly. Even design study is just like that. If you take the whole study like that, आप अगर पूरी पढ़ाई को इस direction में ले जाओगे, आपको किसी चीज़ का burden नहीं लगेगा. Believe me, till 3rd year पूरे 3rd year तक मैं रात में बहुत कम सोती थी. नाइट्स मारो, डिज़ाइन करो, शीट करो, सब करो. थक गई थी मैं 3rd year तक डिज़ाइन आर्किटेक्चर की पढ़ाई करते कहते कि कितना ख़त्म ही नहीं हो रहा है इसकी पढ़ाई. And then I changed the way I started looking at the studies. From 4th year, theory papers के सारे journals में on the spot class में फेयर वहीं लिखना शुरू किया. मैंने कहा अच्छी हैंड राइटिंग आए, बुरी हैंड राइटिंग आए, मैंने यहीं लिखना है. कुछ नहीं हुआ. पहले 2 असाइनमेंट्स में हैंड राइटिंग गंदी थी, 3rd से 1st क्लास. मेरा काम ख़त्म हो गया. मुझे चिल आउट करने का ज़्यादा टाइम मिल गया बाद में. कुछ चिल आउट कुछ होता नहीं था. फ्रेंड्स के जर्नल लिखने पड़ते थे, डायग्राम बनाने पड़ते थे, बट दैट वॉज फन स्टिल. बट यू हैव टू प्लान द वे यू आर हैंडलिंग थिंग्स. इट इज़ ऑल हियर. यू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, यू मेक इट ईजी, यू मेक इट स्ट्रेसफुल, यू मेक इट हैप्पी. इट इज़ हियर. ऐसा क्यों होता है? एक बंदा 10 किलोमीटर चल सकता है और एक बंदा 1 किलोमीटर में उसकी हालत ख़राब हो जाती है. इट इज़ ऑल हियर. इट इज़ ऑल हियर. सब कुछ यहाँ पे है. आप चीज़ को ईजी बनाओ, डिफ़िकल्ट बनाओ, खुश बनाओ, तकलीफ़ वाला बनाओ, सब यहाँ पे. जब यहाँ से चेंज होगा ना, सारी चीज़ें अपने आप चेंज होंगी. नेक्स्ट वन प्लीज. Okay. Yeah. 4 पिलर्स बोला जाए, नहीं बोला जाए, ये ज़रूरी है, नहीं है. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? Okay. I think it can be relative, right? And there are many things for which are left, and for a particular person that can be relative, and that can be that person can be sensitive to that aspect also. Yeah, exactly. This is like what you have to do. Initial process. Yeah. Yes. Right. But they are very important. Very important. Yes. So this is just a start, and later on, what is the demand of that particular. Exactly, ma'am. Yes. Then the philosophy and the concept can also come across it. Ma'am, they need to understand that without services, without structure, services, which I feel is a major thing in anything, very important. But उनको लगता है plumbing को क्यों ही देखना है, या imagine a balcony without a drain. When all the rain comes, your balcony will be flooded with water, and all the water entering into the entire premises. So everything is important with the plan, with the services, with the structure.
and all the expect is you have to have a good design. Everything in the entire thing is important. Uh, I will say that yes, initial stage, this is all important, but it depends person to person and design also that we can add on more to it. I see some common faces, ma'am. जब luxury baths का किया था, I think you were there that time, right? हाँ. So you have already attended something related to services, which was in detail at that time. So आज का तो आप लोग के लिए थोड़ा बहुत preliminary लग रहा होगा, पर ये services से related नहीं है. This entire interaction that we have is for mixed batch of people that are today. We have first years, we have second years, and we have third years. So this is all about how you should be developing a good design. So it's a fundamental that we are talking about कि अच्छा design develop करने के लिए क्या करना पड़ता है. Okay. So as we did get feedback from everyone कि ये 4 pillars ज़रूरी हैं to begin with. इसके अलावा जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे, आगे काम बढ़ेगा, और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होते जाएगी, और बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती जाएगी, पर फंडामेंटली ये 4 चीज़ें सही होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. ओके. सो मे बी दैट इंस्टेड ऑफ टेलिंग दैट प्लानिंग ज़रूरी है, सर्विसेज ज़रूरी है, स्ट्रक्चर ज़रूरी है, उन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करना ज़रूरी है. लेट अस रन इनटू अ एग्जांपल ऑफ अ रियल प्रोजेक्ट and then look at it that उसको कैसे handle किया गया. So let us discuss a project in a brief way. Next slide, please. So this is a project, residential project, in which the site is located on a corner. So these two are the roads, and to the east side was a पूरे society का swimming pool and clubhouse वाला zone था. The requirement of the client was कि they were a family of 4 people, तो उनको एक घर चाहिए. अब रियल लाइफ में जब रिक्वायरमेंट आता है ना, तो डिज़ाइन प्रोग्राम क्लाइंट बना के नहीं देता है, डिज़ाइन प्रोग्राम आपको बनाना पड़ता है. ठीक है. तो इट इज़ यू हु डिराइव कि उनका रिक्वायरमेंट क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उसके हिसाब से आप प्लानिंग करना शुरू करते हो. So we decided that instead of wasting the space within the premises on too much of landscape and water bodies, why not utilize the site condition which already gives us a beautiful view of a swimming pool and a clubhouse on one side. Just develop a house which is mostly 70% inward looking and 30% outward looking. So that was the concept on which the design was developed. The next slide, please. Next slide. So the ground floor house is the parents' room, the dining area, the living area, and a spillover area in an informal area. The upper floor goes, and there are 3 main bedrooms of जो घर के लोग हैं. The master bedroom, one is the son's bedroom, one is the daughter's bedroom, and an attached terrace on the west side, like northwest side पे है. Northwest zone में एक बड़ा terrace है, जिसमें which is the breakout area for both the son and the parents. तो लोग दोपहर को, शाम को या सुबह एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं. प्लस उनका अपना अपना प्राइवेसी है, अपना अपना रूम है, उनका अपना अपना सारा जोन है. बिकॉज द हाउस वॉज मोर इनवर्ड लुकिंग एंड द साइट वॉज लोकेटेड ऑन अ कॉर्नर प्लॉट, तो रोड साइड से और बाजू के घरों से प्राइवेसी के लिए वी डिसाइडेड दैट द टेरेस शुड बी इन सच अ वे दैट इट ब्रेक्स आउट ऑन द स्ट्रीट वेयर देयर इज लेस मूवमेंट, and it should have some kind of enclosure from the side where there are more number of houses located next to it. तो आजू बाजू में जहाँ घर थे उस साइड में it was decided that we go in for a screening. इसके पहले वाली स्लाइड पे जाएंगे. हाँ. So we decided to go in for a screening on the side where there was दूसरे bungalows आ रहे हैं, and we decided that we'll break out on the direction where the street has less number of less movement around it and less kind of disturbance that will come across to the house. वापस अगले स्लाइड पे जाएंगे. Above the first floor, the second floor has just a guest room and a big terrace, accessible terrace for all party area and all. There is a dedicated washroom that is attached to the same floor, so you don't need to come down to use the basic services. Along with that, the
that the terrace that we talked about was treated in a double height, तो इसके भी ऊपर उसका रूफ गया, और उसके रूफ के ऊपर आपके जो भी ग्रीन बिल्डिंग एलिमेंट्स हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले सोलार पैनल्स, वाटर ट्रीटमेंट के लिए सोलार पैनल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के डक्ट्स, पाइप्स, वो सारे उसके भी पीछे के डक्ट्स में से नीचे गए. तो एलिवेशन कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं हुआ. आपने सारी चीज़ें हैंडल करी, आपने एलिवेशन को ट्रीट किया, आपने प्लानिंग की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया, एंड स्टिल यू कुड अचीव समथिंग लाइक यू कुड जनरेट एनर्जी इन द बिल्डिंग, यू कुड प्रोड्यूस एनर्जी इन द बिल्डिंग. यू हैड अ गुड स्क्रीनिंग ऑन द वेस्ट साइड. Because of the screening on the west side, the natural temperature of the building was controlled with the screening. Next, अगले पे जाएंगे. So these are the images of the bungalow. What you see here is a GRC में ये जाली बनाया हुआ है, जिसमें से all the filtered sun comes up. This is all HPL treatment that you see here. On the axis, these were sectional windows, those were used, and the element of design of the bungalow was carry forwarded even while developing the compound wall and the gate and everything. This house in particular, you can watch the same Aviraj Bungalow on Creative Ventures on YouTube. There's a detailed video of the same. Creative Ventures is the YouTube handle main, and you have to search for Aviraj Bungalow. So you can see that you can have an entire audio visual tour of the whole bungalow. You can look at the bungalow from inside out. Okay? तो ये पूरा दिखेगा. This is the entrance, how you have the entrance in the breakout area. The elements and the color and the texture of whatever were decided on the outer facade, a similar tonality of the same was carried forwarded within the house. So we have similar tonality of veneers and all, those are being used on the inner side of the house. So the house is all blended from inside out. So it looks a very homogeneous kind of a home, that where you don't feel कि बाहर से अलग पूरा एलिमेंट डिज़ाइन का है और अंदर कुछ अलग ही हो रहा है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So these are some more images of the house. Anybody has any questions? We could use pool itself as a like water bodies देने के और landscaping करने के जगह pool को ही use कर लिया है. But wouldn't it concern like जो clubhouse के लोग हैं कि their privacy would be invaded as a like house would have a direct outlook on the pool? No, the pool basically they have multiple pools in the clubhouse. So this pool is dedicated for the smaller children section जो मतलब वो swimming सीखते हैं उस तरीके से. Like only toddlers come in that pool, like between the age of 2 to 7 years. The adult pool उनका दूसरे direction पे है. Anything else? Anybody wants to know about the materials? Because materials is also a very important element in design. हेलो मैम, वो जो वहाँ पर बीम है जैसे कि ऊपर की साइड में पूरी स्लैब कास्ट की गई है, तो उसकी जगह अपन कुछ और मटेरियल यूज़ कर सकते थे क्या, मतलब सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से? कर सकते थे, फैब्रिकेशन कर सकते थे, पर आप देखेंगे उसमें आपको यहाँ पे कुछ छोटे फॉर्म में स्काईलाइट्स दिख रहे हैं, विच लेटर ऑन वर सेमी कवर्ड बाय द सोलर पैनल्स विच वर इंस्टॉल्ड अपस्टेयर्स. कर सकते थे. ये इट कैन द स्ट्रक्चर कैन बी मेड इन मल्टीपल वेज. यू कैन do a combination of fabrication and clad it up. You can do, precast. The structure can be done in multiple ways. It's ultimately आपका outcome है कि वो आपको किस finish में देखना है, किस finish में देखना है. तो वो finish create करने के लिए अंदर there are 2 to 3 different options. You can precast, you can do combination of fabrication and clad it up into something जो बाहर से दिखेगा. अभी उसमें अलग अलग दिखता है. Next one please. This is another bungalow in which we had taken the liberty of using all curvilinear forms in all directions. This house has 6 to 7 rooms, a pool to its own self in the premises, and has got one formal living, one informal living, one big lobby area, one formal lobby area. The house spreads from the ground floor to the first floor. So it's like lower ground, upper ground, and first floor. So the materials used are labeled down there. So there are micro concretes and stone chip textures by MCM. Then there are glass bricks used because
This is the eastern side of the house and the house is located in the very hot area in Maharashtra in Jalgaon. So बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे, तो इसलिए we wanted the filtration of light but we didn't want the hot air to come inside. So there is a dual cooling system used in the house. There is a air conditioning plus there is a chiller, complete कूलर का चिलर सिस्टम यूज़ करते हैं वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे टेम्परेचर्स 45-47 से ऊपर जाते हैं. तो पूरे घर में एक डक्ट रन होता है, जिस डक्ट में से कॉन्स्टेंटली ऊपर से वाटर से फिल्टर होते हुए हवा घर के अंदर आती रहती है ऑल द टाइम. सो वो सारा एरिया हमने, जो हमारा कोर था ट्रैवलिंग, जो ट्रांसपोर्टेशन कोर था स्टेयरकेस एंड लिफ्ट, उसके पास में वो पूरा वर्कआउट किया कि हर स्टेयरकेस के मिड लैंडिंग के वहाँ से वी आर गेटिंग कोल्ड एयर इनसाइड. एंड बिकॉज द कोल्ड एयर ऑलवेज टेंड्स टू सेटल डाउन एंड द कोल्ड एयर वाज कमिंग फ्रॉम मिड लैंडिंग, तो लोअर एरियाज उल्टा ज़्यादा अच्छे से कूल हो रहे थे. या because of the gravity. Then the slabs were designed in the way to curve you in the entrance lobby. Gate के अंदर जाते से सामने there is a parking of 5-6 cars. It's a big place. So why I wanted to show you this was because of the, along with the shapes, you also need to think about the material and how you are handling all of it together to achieve whatever the client's requirement is or whatever your design thought is. Anybody has any questions regarding that? बोलिए. मैम जैसे कि आजकल टेराकोटा का यूज़ हो रहा है, हाँ. तो मतलब जैसे कि इसका मेंटेनेंस जो रहता है, इसके अंदर धूल और दूसरी चीज़ें जम जाती है, तो मतलब इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए. इट्स वेरी वेरी ईजी टू मेंटेन मटेरियल, बिकॉज इसको वॉश कर दो तो ये क्लीन हो जाता है. एंड द पिगमेंट इज एडेड राइट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट टेराकोटा ग्रिल. तो कलर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, उस पर कुछ चेंज नहीं होता. ये जो ग्रिल यूज़ किया गया है ये टेरेसेस में स्क्रीनिंग पर्पस के लिए साइड पे यूज़ किया गया है. जैसे ये आपको ये फ्री स्टैंडिंग कॉलम दिख रहा है, इसके साइड में ग्रिल है. इट्स एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग टू द हाउस टू कंट्रोल द टेम्परेचर्स. द जाली इज़ नोवेयर लोकेटेड इन सच ए वे कि ये घर के अंदर उसमें से कुछ उजाला आने वाला है. आपको इंसेक्ट्स का जो कंसर्न है दैट इज़ टेकन केयर बाय द ऑल द मतलब जितने डोर्स विंडोज़ हैं वहाँ पे कहीं पे डोर विंडो को रिप्लेसमेंट करके टेराकोटा जाली नहीं यूज़ हुआ है. ये दूसरे एलिवेशनल ट्रीटमेंट के तरीके से यूज़ हुआ है. Yeah, it's only for jacketing up the building or enveloping the building to control the temperatures, to create the play of light and shadows, to create the ambience of the space. उस तरीके से यूज़ हुआ है. Anybody else needs to know anything else? Next slide, please. So we looked at 2 real-life examples, and this is a schematic example. दैट अगर कुछ इस तरीके से दिखने वाली बिल्डिंग है तो उसमें क्या चेंज करके उसको आप फिनिश लुक लाते हो. तो इट्स द फेनेस्ट्रेशन ऑन द टॉप, द मोल्डिंग्स दोज आर मॉडिफाइड, देन द विंडोज आर शिफ्टेड फ्रॉम एक्सट्रीमली बीइंग फिक्स्ड एट द आउटर फसाड टू द वॉल्स मस्ट बी डबल्ड अप. ऑफकोर्स उसको पेंट किया है, पेंट के साथ उसमें ग्रूव वर्क हुआ है. कुछ इतना सिंपल करने के बाद भी सेम चीज़ अलग दिख सकती है. So what I mean to say is it is not necessary कि आपका जहाँ वॉल आ रहा है आपका विंडो वहीं आना चाहिए. There is no such rule. You can do double walls, you can do fins, you can do so many things. So today was just an introduction to touch, to shake up your brains कि क्या तरीका होगा जिससे हम हमारा पूरा जो तरीका है to design our जो भी आपको असाइनमेंट मिलता है उसमें आप आपके एलिवेशन को किस तरीके से हैंडल करें. तो हम वापस पीछे जाएंगे जिसमें वो 4 पिलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ जिस पे हैं उस पे. हाँ, तो इसमें अभी स्ट्रक्चर, सर्विसेज और इंटीग्रेशन ऑफ एस्पेक्ट्स. अभी आई वुड लाइक टू आस्क यू, ऑफकोर्स द सेकेंड प्रोजेक्ट का मैंने सिर्फ एक ही इमेज शेयर किया है विद पर्पस दैट उसमें मुझे सिर्फ मटेरियल्स के बारे में बात करना था एंड शेप था, तो मैंने कहा आई डोंट वांट टू venture too much into it. That bungalow is also there on YouTube. The other bungalow, that also you can look at. तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको कहीं पे सर्विसेज नज़र आई जब आपने रियल फोटोग्राफ बंगलो के देखे. आपको कहीं पे टॉयलेट के जो पाइप्स होते हैं जो बाहर निकलते हैं, रेन वाटर का पाइप होता है, वो नज़र आया. वो जो सेकेंड वाला प्रोजेक्ट था उसमें देयर वाज अ मिसकम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड अस
जो राउंड वाले शेप वाला था, जो पूरा फ्री फ्लोइंग फॉर्म में था. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बंगलो वी हैड, जो बोलते हैं ना कि प्रिसीजन ऑफ ड्राइंग इज़ इम्पॉर्टेंट. द कॉन्ट्रैक्टर हु वाज डूइंग द सोलर पैनल्स, ही डिड नॉट लुक एट द मार्किंग, और उसने फ्रंट साइड पे सोलर पैनल लगा दिए पीछे लगाने के बजाय. सो इट द हाउस लुक्स लाइक उसके ऊपर विंग्स आ गए हैं अब, तो अभी वो चेंज करना बाकी है, तो वो सामने की तरफ सोलर पैनल है अभी उसमें. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर क्योंकि जो भी एजेंसी होती है हमारी लाइन से रिलेटेड, प्लम्बर होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, विंडो वाला होता है, पेंटर होता है, टाइल लगाने वाला होता है, वॉल बनाने वाला होता है, हर एजेंसी अलग होती है. तो इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट दे लिसन टू व्हाट द आर्किटेक्ट इज टेलिंग, बिकॉज वो जिस जगह पे वो अपना दिमाग लगाएंगे वो कुछ और ही बन जाता. So that is why you should be thorough in your technical knowledge, structures and services. Then only you can create simple things which look very workable and very clean and nice. It's not necessary that आपको कुछ बहुत flamboyant all the time you have to go in for parametrics. It's not necessary. Parametrics से हर चीज़ नहीं बन सकती. आपको कभी कभी लीनियर फॉर्म्स में भी प्ले करना पड़ता है, और उसके लिए आपको आपका बाकी का नॉलेज थोड़ा सा आप पक्का कीजिए, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएंगे. सेकेंडली, आप आपका मटेरियल का नॉलेज बढ़ाइए. आपका जितना मटेरियल लाइब्रेरी है कॉलेज में, या आपके जो भी असाइनमेंट्स हैं उसमें जितने आपको एग्जाम्पल्स कोट करने पड़ते हैं कि व्हाट आर द ऑप्शंस इन दिस, वो आपको इंस्टेड ऑफ आंसर लर्निंग कि मुझे क्वेश्चन का आंसर लिखना है, आपको जेन्युइनली पता होना चाहिए. जैसे मे बी द पीपल हु आर देयर इन द प्रीवियस लेक्चर कैन नाउ टेल वेरी इजीली दैट व्हाट इज़ अ वॉल माउंटेड WC, व्हाट इज़ अ P ट्रैप, S ट्रैप, और वो पूरा फंडामेंटल कम्प्लीटली उस समय क्लियर हो गया था. लाइक वो कभी लाइफ में अब वो मतलब निकलेगा नहीं दिमाग से. सो देर आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आप पहले आप थ्योरी के तौर पे लेते हो, और बाद में वो लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि ऐसा लगता है यार उस समय अपने ध्यान ही नहीं दिया, अब अपने को वापस यही चीज़ पढ़नी पड़ रही है. So these are very important things for you to come to your Z-axis, that you have to be you have to show interest in the things, because you are going to implement those things in your design. And for that reason everything what you study becomes converts into a design. I don't say that every architect is designing, but whatever work you do, everything what we do from morning to evening is design. You get up from the bed, you are going to the wash basin and brushing your teeth. The way you are moving your hands will be designing the cleanliness of your mouth when you are brushing your teeth. आपने ठीक से रोटेशन किया तो ठीक है, वरना डेंटिस्ट का विजिट गारंटीड है. So everything that you do is design. ये सिर्फ एक जो क्रिएटिव फील्ड में है ये बात कर सकता है, जो बहुत टेक्निकल फील्ड में है उसको लगेगा कि क्या डिज़ाइन पूरे टाइम डिज़ाइन की बात करें. बट दैट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ. भगवान ने हमें बनाया, हम खुद एक डिज़ाइन है. हमारी हर उंगली, हर चीज़ अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट होती है. इमेजिन करो किस तरीके का मशीन सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर. सो एवरीथिंग इज डिज़ाइन. द ओनली थिंग इज़ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द Z एक्सिस ऑफ आर्किटेक्चर, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग वापस वो वाली स्लाइड पे जाएंगे, इसके बाद वाली. तो एवरीथिंग दैट यू डू, यू नीड टू जस्ट सब चीज़ को इकट्ठा करना है और इम्प्लीमेंट करना है. So I want the mic again to be rotated in around in the audience. Next slide पे जाएं. तो जैसे और एग्जाम्पल्स हैं दैट अगर आपने कुछ इस तरीके का प्लान सोचा कि आपको ऐसे रूफ देनी है, तो उसके एलिवेशंस कितने तरीके से बन सकते हैं. Go wild in your sketching, go wild in whatever you are doing. You're at the best stage of your life. आप अभी जो पेपर पे कर सकते हो वो, उसके लिए आपको किसी से बजट नहीं मांगना है. आप क्या कर रहे हो. वाइल्ड डजंट मीन रॉन्ग, वाइल्ड मीन्स क्रिएटिव. क्रिएटिवली आप कुछ भी कर सकते हो उसमें, वो वाइल्ड इन द डिज़ाइन. उसमें अभी आप देखेंगे इसमें द काइंड ऑफ आपने किसी ने मुझसे पूछा था RCC को ऑप्शन है क्या. यू आस्क्ड मी राइट, जो वो डबल हाइट टेरेस के इसमें इट इज़ नॉट अ स्लैब. नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए. तो यहाँ टॉप पे जो दिख रहा है ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैब्रिकेशन एंड सैंडविचिंग द फैब्रिकेशन का आई सेक्शन विद टॉप एंड बॉटम मटेरियल. इसमें स्लैब है ही नहीं.
तो आपको आपके मटेरियल का नॉलेज, स्ट्रक्चरल नॉलेज और ये सारी चीज़ें जब आपकी इम्प्रूव होते जाएंगे, आप डिज़ाइन में अलग तरीके की चीज़ें यूज़ करना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट वन प्लीज़। अभी हमने कुछ 5-6 स्लाइड से पहले देखा था जब वो रेड ब्लॉक्स थे, रेड एंड येलो ब्लॉक्स थे, उसमें वी वर जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग कि रेड ब्लॉक के साथ क्या किया जा सकता है, येलो ब्लॉक के साथ क्या किया जा सकता है। यू सी सिमिलर काइंड ऑफ अ थिंग हियर, लाइक व्हेन समबडी कैन स्टार्ट डिज़ाइनिंग, व्हाट इज़ द वे यू कैन हैंडल द डिज़ाइन, आप उसको पंक्चुएट किस तरीके से कर सकते हो। लाइक यू कैन लिटरली, देर आर, एंड दिस इज़ जस्ट वन वे, यू कैन डू इट इन सो मेनी अदर वेज, राइट। देन ये इमेज काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी देखी होगी, दिस इमेज, दैट व्हेन यू स्टार्ट the 1 number image, the 2 number image, and we reach the last image. So this is the way you should be doing your own brainstorming, कि आप किस तरीके से आपका थर्ड डायमेंशन में ऑप्शंस ट्राई कर रहे हो। द प्रॉब्लम इज आप लोग सिर्फ 2D को एलिवेशन में प्रोजेक्ट करते हो, आप प्लान बना के उसको सीधी लाइनें ऊपर लेके आते हो। दैट इज़ नॉट द वे ऑफ डिज़ाइनिंग। The way of designing is orthographic projection. That is the real way of designing. You do a isometric of your basic plan and play with your isometric. आपके 2 rectangles हैं, उसको isometric में pull करो, आपका G+1 है, G+2 है, and then play with it. उसको कहाँ से पंक्चुएट करना है, क्या हो सकता है आपका प्लान भी चेंज करो कि मुझे इस तरीके का एलिमेंट चाहिए, यहाँ प्रोजेक्शन चाहिए, तो आप उसको भी चेंज करोगे आपके प्लान को, एंड दैट्स ओके एट द स्टूडेंट स्टेज बिकॉज यू हैव ऑल द टाइम टू डू दैट। तो सब हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मोर मटीरियल्स, सेम थिंग इन डिटेल। Look at the way the windows are set behind. Is simple weathershed always a way of shading any window? इस पे मैम इस पे तो इतना डेटा है मेरे पास शेडिंग डिवाइसेस पे, large terracotta tiles used in creating a compound wall. Roof Mangalore tiles, not even only terracotta tiles. रूफिंग टाइल से कंपाउंड वॉल बना है। इसमें द वे द स्लैब एंड द बीम इज डिटेल्ड आउट टू क्रिएट द फिन काइंड ऑफ अ लुक। ये जो वर्टिकल है इसको आगे फेनेस्ट्रेशन, ये यही है, सेम थिंग इज टेकन देयर। सो हाउ डज वन क्रिएट समथिंग लाइक दैट? ये बताओ, ये बिल्डिंग का अगर कोई स्टूडेंट प्लान बनेगा तो इसका भी वही डब्बा वाला एलिवेशन बनेगा ना, जो प्रिलिमिनरी स्टेज पे रेक्टेंगल विथ मोर स्क्वायर्स इनटू इट, राइट? बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे वही बनेगा। बट डू यू फील दैट दिस बिल्डिंग इज ऑल दैट बैड? नो, इट्स लुकिंग डिसेंट इनफ, अच्छा दिख रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट पैरामीट्रिक कुछ नहीं है, फिर भी अच्छा दिख रहा है। तो क्यों अच्छा दिख रहा है? बिकॉज इट्स वेल डिटेल्ड आउट। The position of window is not right at the edge of your building. It is well thought of for the shading reasons. The vertical element in the building is balancedly handled by getting the thinner edges out and pushing the center behind. अब इसमें ऐसा नहीं कि पूरा ही ये मास एक साथ आ गया है, इसमें भी there is detailing. The horizontal bands have different detailing, the vertical bands have different detailing. So that is what it is. Like last few slides we are just looking at examples कि क्या हो सकता है. Simple things can also look very nice if you just look at them or handle them in a different way. So what I am wanting is कि आप आपके सारे plans को जब आप elevation में project करने के बजाय आप plan stage पे isometric बनाना शुरू करो. Simple isometric, और isometrics के साथ साथ में elevation develop करो. आप लोग क्या करते हो, प्लान के बाद आप एलिवेशन बनाते हो और एलिवेशन बनाने के बाद उसमें डिज़ाइन एलिमेंट घुसाने की कोशिश करते हो। तो द वे ऑफ हैंडलिंग हैज़ टू चेंज। वो चेंज करोगे अपने आप। अभी जब आपकी वेकेशन लगेगी, आप आपके पुराने डिज़ाइन का एक नया एलिवेशन बनाना, और मैम इनको मेरा मेल आईडी देना और बिफोर आफ्टर की मुझे शेयर करना। हैंड स्केच होगा तो भी चलेगा। आई वुड लाइक टू सी कि इसके बाद क्या चेंज है।
और ये असाइनमेंट नहीं है, ये रियल लाइफ असाइनमेंट है कि आपके एलिवेशंस बेटर होने वाले. Now look at this wall. It could have been a straight wall. It could have been a wall with multiple circular punches. It could have been a wall with 2 rectangular slits. Everybody's idea is different. The person who designed that wall, his idea was different or her idea was different. So that is what is the Q axis in design, quality axis in design. So from today we will not call it Z axis, we will call it Q axis, quality axis. How do we improve the quality of our design? Okay. Next slide please. So now we see that along with the 4 pillar, एक और आगे आ गया मैम, मटीरियल्स. ऐसा जैसे जैसे आप खुद एक्सप्लोर करोगे, आप उसमें या तो ऐड करते जाओगे या उसी में आप ब्रांच आउट करते जाओगे कि मुझे सर्विसेज में ये सीखना है, मुझे स्ट्रक्चर्स में ये सीखना है. आप इसके साथ में ब्रांचिंग कर सकते हो कि मुझे मेरा ये स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे मेरा ये एक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग करना है. आप अपने आप करोगे, खुद से करोगे. दैट इज इम्पॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट वन प्लीज. हियर वी आर. So these are the things along with the other things that I have not circled are also very important. Believe me, according to me, this is number 2. What is number 1? I can talk only when I have knowledge. If I don't have knowledge, I can't talk. पर ये भी बहुत ज़रूरी है. कितने लोगों को अपना बहुत बड़ा डिज़ाइन हाउस शुरू करना है अगले 10 साल बाद, करना है ना? तो अभी तो एज है, नॉलेज पक्का करो और कम्युनिकेशन स्किल को सुधारो और लग जाओ. बिकम द बिगेस्ट ऑफ पीपल इन द कंट्री, देन गो बिकम बिगेस्ट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड. एंड देन वी विल बी ऑल्सो वेरी हैप्पी टू कोट दैट हाँ, आई नो दिस पर्सन, आई हैव मेट दिस पर्सन व्हेन ही वाज स्टडिंग और शी वाज स्टडिंग. Okay, next please. That's it. And we wrap up. And anybody else has to ask any general questions, you're most welcome. We'll have a Q&A for next 5 minutes. तो जब भी हम एलिवेशन डिजाइन करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मतलब जब रेंडर्स वगैरह सब कर देते हैं, हाँ, तो साइट पे ये दिक्कत आती है जब भी लेबर या जो भी काम करते हैं, तो वो रेंडर क्या कुछ अलग ही बन जाता है. कभी कभी वो जो सेम जो रेंडर हमने क्लाइंट को दिखाया था, कुछ करा था, वो बनता ही नहीं है. तो क्लाइंट एक ही चीज बोलता है कि आपने कुछ और दिखाया था, बन कुछ और गया है. उसके रीजंस होते हैं, 2 रीजंस होते हैं. या तो ऑन साइट जो टेक्निकल ड्राइंग है उसमें या तो एरर्स हैं या किसी ने चेंजेस किए हैं. और सबसे मेजर रीज़न जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो तो चेंज ऑफ मटेरियल होता है कि जब आपने कुछ एक बहुत प्रीमियम मटेरियल यूज़ किया हुआ है आपके रेंडर में एंड द क्लाइंट कैन नॉट अफोर्ड इट. लाइक तो जैसे MCM एंड ऑल के टेक्सचर्स आर वेरी एक्सपेंसिव. दे बिगिन ओनली फ्रॉम विद 450 रुपीज़ स्क्वायर फीट से लेके 1100 रुपीज़ स्क्वायर फीट का टेक्सचर आ रहा है, रियल स्टोन चिप टेक्सचर. तो पसंद आता है उनको करते समय. जब उनको पता चलता है कि ये 7000 स्क्वायर फीट पे या 25000 स्क्वायर फीट पे ये टेक्सचर करना, तो बोलते नहीं भैया हमसे तो नहीं होने वाला, आप तो रंग लगा दो, तो अलग ही दिखेगा ना. मैम सेकेंडली हम स्टार्टिंग से कंसेप्ट दिमाग में लेके चलते हैं कि कंसेप्ट के थ्रू अलोंग हमको डिजाइन करना है, इंडॉल करना है. हम आखिरी में एलिवेशन तक आते आते वो कंसेप्ट को टोटली भूल जाते हैं. 5th सेम में मेरे साथ में ये हुआ कि एक कंसेप्ट था, हाँ, एंड में आते आते वो कंसेप्ट टोटली वैनिश हो गया. और जो आखिरी मेरे पास में बचा था वो मैंने उसके थ्रू सबमिट कर दिया. तो उस चीज को कैसे टैकल करें एंड तक आते आते? कंसेप्ट सिर्फ प्लानिंग में था या कंसेप्ट होलिस्टिक था? मेरा इस पे आप सोचो कि सिर्फ प्लानिंग लेवल पे कंसेप्ट था कि आपको ये चीज़ें यहाँ इस लेवल पे चाहिए, ऐसा था, या आपको कोई शेप क्रिएट करना था वो था और आप कर नहीं पाए. आपका और बैरियर क्या था, इसको आइडेंटिफाई करो, या अभी अगर ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया होगा तो शेयर करो. मैम बैरियर सबसे बड़ा ये था कि जब मैंने वो शेप था मेरा एक पर्टिकुलर, उसको जैसे ही मैंने प्लानिंग में इनरोल करा, प्लानिंग में डाला, पूरी प्रॉपर प्लानिंग हो गई उस शेप के अलोंग में. व्हाट वाज द शेप? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर था, हेक्सागोनल शेप था. ओके.
जैसे ही उसको प्लानिंग में डाला, स्पेसेस वाज वेरी गुड। व्हाट वाज द प्रोजेक्ट? क्लब हाउस डिजाइन। ओके, फिर तो जैसे ही उसको एलिवेशन में प्लॉट करने की कोशिश करी, तो ड्यू टू दी स्लैंट्स एंड एजेस, वो एलिवेशन जो मैंने सोचा था कि ये बन सकता है, वो टोटली डिफरेंट जा रहा था। ओके, तो उस चीज को कैसे टेकल करें? तो फिर आपको एक चीज के साथ रहना पड़ेगा विद इन योर डिजाइन प्रिंसिपल्स कि आपको हनीकॉम्ब इफेक्ट बिल्डिंग बनने के बाद दिखना चाहिए या जब आप किसी स्पेस के अंदर आते हो तब दिखना चाहिए, या दोनों जगह दिखना चाहिए। आपको इस पे आके आपको एक इनिशियल थॉट को उसको थॉट पे आके आपको रुकना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि आपको हनीकॉम्बिंग आपको थर्ड डायमेंशनल में देखनी है, तो आपको एक फुटबॉल खरीद के लाना है, उसमें सारे वो हेक्सागोनल शेप्स होते हैं, और फिर क्या बकमिनिस्टर फुलर जी के को नमस्कार करना है, उनका जियोडेसिक डोम कैसे बनता है उसको देखना है, और अपनी डिजाइनिंग पे कूद जाना है, और क्या। That is why history is important, that is why structure is important, that is why material is very important. More please, this is very very interesting because सब लोग एक किसी की क्वेश्चन से सब लोग सीख रहे हैं, राइट? लाइक आपने बताया था कि हम हमारे एलिवेशन के हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग डिज़ाइन एलिमेंट्स देंगे, बट होता क्या है जब लाइक आई हैव क्रिएटेड अ गुड प्लान बट व्हेन आई ट्राई टू पुट इट इनटू एलिवेशन वो बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, बट उस बेसिक को चेंज करने के लिए जब मैं एलिवेशन को इम्प्रूव करता हूँ तो वो फिर जो डिज़ाइन था वो सेटिस्फैक्टरी नहीं बचता, प्लानिंग इज नॉट सेटिस्फाइंग, फिर ऐसा लगता है कि ठीक है। That is why I said try out with isometrics instead of improving your elevation. आप प्लान के स्टेज पे ही आइसोमेट्रिक बनाओ, और तब तक प्लान फ्रीज मत करो। प्लान के इनिशियल स्टेजेस में आइसोमेट्रिक बनाओ। आइसोमेट्रिक वर्ड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आई डोंट नो आप लोग कितने ऑलरेडी स्केचअप यूज़ कर रहे हो, कितने टूल्स यूज़ कर रहे हो। सो आइसोमेट्रिक इज द बेस मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म जो फर्स्ट ईयर में सीखे हो, तो वो तो सभी को आता है, इसलिए मैं आइसोमेट्रिक वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि जस्ट पुल योर प्लान इनटू वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस, बट डोंट लुक एट इट एज अ एलिवेशन। 2D में मत देखो, उसी प्लान को 3D में देखो। तो लोग ये बहुत कैसा लग रहा है, फिर उसमें सोचो कि मुझे हाँ G+1 करना है तो मुझे आइडेंटिकल प्लान रखना है क्या? नहीं, अच्छा मैं इसको इधर से पुश करके देखता हूँ, तो फिर इसमें से कौन सा मेरा क्लासरूम निकल गया, अब मुझे उसको कहीं और डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ कैंटिलीवर करूँ क्या, इसको उठा के मैं कहाँ डालूँ? तो इट इज़ अ साइमल्टेनियस प्रोसेस। Plan elevation actually is a simultaneous process. Because you handle it in 2 different stages, your building doesn't come up as a holistic thing. It's a simultaneous process. साथ साथ में चलता है। जैसे 2 पाँव एक पीछे एक आगे जाके आपका कदम आगे बढ़ता है। एलिवेशन प्लान वही चीज़ें हैं। कभी आप एक कदम पीछे भी जाओगे, कभी एक कदम आगे भी जाओगे to change your design. It's a simultaneous process. If मैम आप भी अब ये प्लान एलिवेशन को जहाँ तक पॉसिबल है आप इसको अलग तरीके से इनको टाइमलाइन दे दो। जैसे हम अभी तक करते थे कि प्लान सबमिट करो, तो बोलना नहीं, आप प्लान और आइसोमेट्रिक सबमिट करो, और आप प्लान में कहाँ अटक रहे हो वो डिस्कस करो कि मुझे ये शेप चाहिए तो मेरा प्लान नहीं बैठ रहा है। सो इट विल बी अ बेटर ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्लॉक मॉडल, हाँ ब्लॉक मॉडल, दैट इज नॉट ब्लॉक मॉडल, आइसोमेट्रिक सेम है। मॉडल बनाने में टाइम जाता है, आइसोमेट्रिक बन जाएगा जल्दी से। सो साइमल्टेनियसली उस पर ये करो। सो अभी लाइफ में क्या होता है, जब स्टूडेंट्स होते हैं तब वो फोरसाइट नहीं होती है, मेरा सबमिशन, मेरे मार्क्स, मेरा शीट, मेरे कलर को कोई और नहीं कॉपी करो, हम इसी में लड़ रहे हैं बैठ के। मैंने पर्पल इंक यूज़ की, तू पर्पल इंक मत यूज़ कर। मैंने हैंडमेड पेपर यूज़ किया, तू हैंडमेड पेपर क्यों यूज़ कर रही है? दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स इन लाइफ। हाँ दीज आर वेरी, बिलीव मी, दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स इन लाइफ। आपने फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम के थर्ड वीक में कौन से दिन छुट्टी मारी थी, जिस दिन का सबमिशन मिस हो गया वो याद भी नहीं होगा आपको, या उस दिन पिछले वीक के मंडे को दोपहर को 12 बजे क्या पढ़ाया गया याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? बिकॉज दीज आर थिंग्स विच वी डोंट मेक देम इम्पॉर्टेंट, वी मेक अननेसेसरी थिंग्स इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। हम फालतू की चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हम लर्निंग को इम्पोर्टेंस देने के बजाय ना वो 2 मार्क, 3 मार्क, 4.5 मार्क, 5 मार्क को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, मुझे 1 मार्क कम मिला, पर आई नो आई एम मोर थरो इन माई लर्निंग। माई हैंड राइटिंग वॉज बैड इन राइटिंग, पर मुझे मेरी नॉलेज पक्का है, मुझे मेरा वाइवा ले लो, मैं सारे आंसर सही दे दूंगा।
दैट्स ओके, इट्स ओके। कौन पूछने वाला है तुम्हारे मार्क्स? बताओ। तो पेरेंट्स पूछते हैं अच्छा हो गया, पास हो गया, फर्स्ट क्लास आ गया, सेकंड क्लास आ गया, हाँ। वो 1 मार्क के लिए रो के क्या करोगे? नॉलेज पक्का करो, नॉलेज पक्का करो, अल्टीमेटली वही काम आने वाला है। और ये जो हमारे लाइफ में जितने बेंचमार्क्स होते हैं ना कि 1:30 बजे खाना खाना है तो डेढ़ नहीं बजा है अभी। मैं अभी 10 मिनट और लूंगी तुम्हारे अभी 1 बजे छोड़ूंगी मैं तुमको। तो मैं कुछ फनी चीज़ें बताती हूँ तुम लोग को अबाउट सम प्रीवियस फेमस आर्किटेक्ट्स। Frank Lloyd Wright and Buckminster Fuller had a habit of dozing and napping during the day. वो दिन में ना काम करते करते 1-2 घंटे बाद ना ऐसे 15 मिनट के लिए उनकी सुलंट का टाइम होता था। वो जाते थे, आई जस्ट कम बैक करके वो जाके उनकी रिलैक्सिंग चेयर में बैठ के सो जाता थे। वो दिन भर में ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में, बिट्स एंड पीसेस में बहुत नींद निकाला करते थे ये दोनों लोग। पर फिर जब रात में सब उनका स्टूडियो वाले सब लोग चले जाते थे और उन लोगों में अर्ली डिनर का कल्चर होता था कि 7-8 बजे सब खत्म हो गया, खाना पीना सब कुछ, सब चले गए, स्टूडियो में से सब चले गए। उस समय वो डिज़ाइनिंग के लिए बैठते थे, उस समय डिज़ाइनिंग के लिए बैठते थे और फिर नेक्स्ट डे दे यूज्ड टू बी रेडी विद देयर कंसेप्ट्स एंड दे यूज्ड टू गिव देयर स्टाफ एवरीथिंग कि इस पे आगे काम करो। हर एक का बॉडी क्लॉक, हर एक का तरीका काम का अलग होता है। कोई अर्ली राइजर होता है, किसी को रात में समझ में आता है, किसी को ग्रुप में काम समझ में आता है, किसी का ग्रुप में बिगड़ जाता है। तो हर एक को अपना आइडेंटिफाई करना है कि किसको क्या वर्क करता है। देन अनदर वन वाज लुई बैरागन। लुई बैरागन वाज मोस्ट फैंसीएस्ट ऑफ मैन आई हैव एवर रेड अबाउट। उसको पता है खाना भी सेम रंग का लगता था। अगर उसने सोचा कि आज मेरे को पिंक रंग देखना है, क्योंकि वो बोलेगा कि मुझे बीटरूट सैलेड विथ गिव मी बीटरूट सैलेड विथ वाटरमेलन एंड सब कुछ। फिर वाइट खाएगा तो सब वाइट कलर का खाएगा, पिंक खाएगा तो सारा पिंक कलर का खाएगा। लोगों के अलग अलग फैंसीनेस होते हैं, अलग अलग तरीके से जीते हैं। क्यों? वो मोनोक्रोमैटिक। वो बोलता है कि मैंने इसमें डिसीजन में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, मैंने मेरा डिसीजन दूसरा बनाना। There were people who used to sketch on the floor, sketch on the walls when they're going on the site. There are so many of them, like people who have worked with natural materials. Mostly they never had their drawings in place. पर इसमें से एक चीज़ है, इसमें से ना सही चीज़ सीखो, गलत मत सीखो कि उसने ड्राइंग नहीं बनाई तो मैंने नहीं बनानी। उस स्टेज पे आओ फिर मत बनाओ। उस स्टेज पे आओ कि तुम हाथ हिलाते हुए जाओगे और तुमको लोग लाखों रुपए दे देंगे, हाँ तू तो सही है, तू ड्राइंग नहीं बनाता फिर भी तेरे से ही काम कराएंगे, तब मत बनाना। तब तक तो बनानी पड़ेगी। There are many stories of all the designers, and there are many stories of architects who had failed during their studies, and there are many stories of people along with doing architecture are doing very good furniture design. जैसे फिलिप स्टार्क जो हैं, जो प्रोडक्ट डिज़ाइनर हैं, he designs watches, chairs, walls, so many things. Bjarke Ingels जो अभी का सबसे फेमस आर्किटेक्ट है, he is a very good स्पीकर। वो जब खुद छोटा था, ही स्टार्टेड विथ वर्किंग। पहले वो तो काम करने पहले लग गया था, एंड काम करने के बाद में वो किसी गवर्नमेंट एजेंसी में इंटर्नशिप करते करते फिर उसको ध्यान में आया कि नहीं मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है आर्किटेक्ट बनना। फिर वो आर्किटेक्ट बने और उसके स्टूडेंट होते हुए ही 2nd ईयर या 3rd ईयर में कोई तो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर लिया था। इस तरीके से ही इज़ अ वेरी गुड स्पीकर। बहुत जगह उनका पब्लिक स्पीकिंग भी बहुत अच्छा है। इज़ अ वेरी हम्बल ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छे हैं। तो आप जितने लोग, बीबी दोशी का हुसैन दोशी गुफा इज़ द मोस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी डिज़ाइन फ्रॉम एवर, दैट इट वॉज डिज़ाइन फॉर M.F. हुसैन जस्ट विद द थॉट कि चल तेरे लिए कुछ मैं बना देता हूँ। दोनों दोस्त थे, एंड ही लैंडेड अप मेकिंग द डोम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स हाफ बिलो द ग्राउंड, एंड इट वॉज नेवर सक्सेसफुल एज अ आर्ट गैलरी बिकॉज उसके वॉल्स कर्व थे तो उस पर कभी आर्ट इंस्टॉल ही नहीं हो पाया। नाउ दैट हैज़ बिकम मोर मॉन्यूमेंटल इन द टर्म्स कि लोग वहाँ पे जाके उस स्पेस को एंजॉय करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि हर एक से हर चीज़ हर बार सही बनती है, उसका कुछ और यूज़ निकल आता है कभी। बट बीवी दोशी वॉज अ वंडरफुल ओरेटर। वो गलती भी करेंगे ना, तो गलती को कैसे हैंडल करते थे वो भी उनका सुनने जैसा है। So there are so many things to learn in this world. I still am reading. I still am, finding out about what is happening new in life. Learning is never boring. It can never be boring. So keep learning and keep growing. Thank you very much.